instance of instance of operator that already in the operator chapter we cover. The casting of object is used where you need where you have received a reference from the parent class and want to access the full functionality of the child class. Okay, so already we did it. We are creating a object of parent class and it is giving a reference to the child class. Through this object, we call all the functionality of the child class. But if that functionality is not present in the parent class, and if you want to call, then it shows an error. So here, by using of instance of what you have to perform, this instance of helping you to check whether the class object is giving a reference to which class. You are creating a object of class, you are giving a reference to the other class. And sometimes we are creating a more than one object for a class to check whether the two objects giving a same reference or giving a reference to which class. To check for it, we're using instance of keyword. Instance of keyword, it is used for checking purposes. It is used to check whether the two objects giving a reference to the same class or not. Restore the full functionality of the object by casting. As you know that by using of casting, we can retrieve all the functionality. How? In previous example, we're creating a object of employee class and that object is giving a reference to the manager class. And through that EM object, we call the functionality work function. But in the manager function, if you check that your node, manage function is present. Manage function present in manager only. It is not present in the employee. So through this object, if you want to call all the functionality, we go for a casting. Okay. So casting guideline is what? Cast upward in the hierarchy done implicitly. Upcasting means you are creating an object of class and you are creating an object of child class, then you initialize it. And downward casting is checked by the compiler so that you have to use in the bracket to pass the object. But here my work is what? For checking that what is the work of instance of. Instance of, it is basically it is used to check whether the two objects belongs to same class or not, or whether the object is giving a reference to which class. For checking that, instance of is used. So
check. So class employee, everything is blank. I'm not passing any functionality here. Class manager, which is extends from employee. Class director extends from employee. Then here we pass class check instance. This is another class. If you check here, in this class check instance, I'm creating a function, public void react function. Public void react function is present. This react function contain the parameter that is employee E. Employee E is the parameter. Now here we create a object of class check instance UE equals to new check instance. Which one? Now this object. ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट यहां पर बना दिया. Now I am creating a object of employee class. मेन मेथड ने ऑब्जेक्ट बनाया employee OB equals to new employee. अच्छा, ये जो UE ऑब्जेक्ट है, so by using of this object I am calling here a react function. This function I am calling. So when I call the react function, if you notice here, this react function contain a parameter that is employee E. It contain employee E is a parameter. EOE react ये फंक्शन को कॉल किया. जब मैं कॉल करता हूं यहां पर क्या है ना, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है. तो अगर पैरामीटर में मेरा एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, मेरा वैल्यू क्या होगा, जो वैल्यू मैं पास करूंगा वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अगर ऊपर में आईएनटी डिफाइन करता तो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू मुझे पास करना पड़ता, 10 20 30 इस तरह से न्यूमेरिक वैल्यू पास करना पड़ता. आज हियर वी डिफाइन एम्प्लॉय ई ऑब्जेक्ट, देन ओबी वी आर पासिंग हियर. So when I pass OB, the OB is initialized in the E. Now OB is giving a reference to whom? Employee. Now OB is giving a reference to E. तो यहाँ पर ये चेक होगा. E is the instance of manager. ये जो E ये किसको रेफरेंस दे रहा है? मैनेजर को रेफरेंस दे रहा है? No. E is the instance of director. No. Else it is showing you this is employee. तो अभी मैं इसको रन करता हूँ. So it is showing you this is employee. अभी थोड़ा मैं चेंज करता हूं. मैं ये जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो एम्प्लॉय है इसको कमेंट डाल देता हूं. अभी यहां पर पास करता हूं एम्प्लॉय ओबी इक्वल्स टू न्यू मैनेजर. एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस दे दिया मैनेजर को. नाउ ओबी इज इनिशियलाइज हियर. ओबी को यहां पर मैंने रेफरेंस के हिसाब से पास किया, यूई डॉट रिएक्ट ओबी. ओबी जाकर ई को रेफरेंस देगा, यहां पर चेक होगा. E is the instance of manager. Yes, because we are creating a object of class and it is giving a reference to the manager. So E is the instance of manager. Yes, so it is showing you this is manager.
तो जावा सी so this is manager. Now अभी मैं इसको कमेंट देता हूं। अभी एम्प्लॉई OB इक्वल्स टू न्यू डायरेक्टर, मैं इसको रेफरेंस देता हूं। जो अभी मैं यहाँ को इसमें अगर रेफरेंस देता हूँ ui.react OB यहाँ पर पास किया, तो OB जाकर यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर चेक होगा is the instance of manager, no. Is the instance of director, yes. So this is director, यहाँ पर दिखाएगा this is director। समझ में आया अभिमन्यु? What is the work of instance of? सर थोड़ा सा समझ आया, तो फिर समझा दीजिए सर। वो इंस्टेंस वाला पार्ट समझ नहीं आया, इंस्टेंस वाला वो कैसे समझ? ये वाला? हाँ सर। हाँ, इंस्टेंस ऑफ एक ऑपरेटर है, ये बेसिकली यूज होता है कौन सा ऑब्जेक्ट किस क्लास को रेफरेंस दे रहा है उसको चेकिंग करने के लिए इंस्टेंस ऑफ यूज किया जाता है। ये वाला प्रोग्राम में मैं यहाँ पर 3 क्लास बनाया। एम्प्लॉई इज अ पेरेंट क्लास, मैनेजर जो एक्सटेंड हुआ एम्प्लॉई से, डायरेक्टर एक्सटेंड हुआ एम्प्लॉई। मतलब ये जो मैनेजर डायरेक्टर ये सब क्या है ना, चाइल्ड क्लास ऑफ एम्प्लॉई। और एक क्लास बनाया चेक इंस्टेंस। चेक इंस्टेंस में हम रिएक्ट फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किए। तो फंक्शन में हम पैरामीटर देते हैं। अगर हम यहाँ पर INT लिखेंगे तो इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, फ्लोट लिखेंगे तो फ्लोट वैल्यू पास करेंगे, ओके। लेकिन यहाँ पर हमने क्या पास किया, एम्प्लॉई, मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस पास किया। समझ में आया इतना तक? यस सर। उसके बाद और एक क्लास में मैं मेन मेथड पास किया। इस मेन मेथड में ये जो चेक इंस्टेंस जो क्लास है, ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाया। यहां पर ऑब्जेक्ट बनाकर यहां पर आ गया एम्प्लॉय क्लास में, एम्प्लॉय OB इक्वल्स टू न्यू डायरेक्टर। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस दे दिया डायरेक्टर को, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय पेरेंट है, डायरेक्टर आपका चाइल्ड क्लास है। तो ये जो ई ऑब्जेक्ट है ये चेक इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के मदद से हम रिएक्ट फंक्शन को कॉल किए। रिएक्ट फंक्शन का कहां पर है, चेक इंस्टेंस में है। तो फंक्शन को कॉल किए ऑब्जेक्ट बनाकर। यहां तक ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो फंक्शन है ये कुछ पैरामीटर ले रहा है। ये पैरामीटर क्या है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर डिफाइन किया गया है। तो इसलिए क्या होगा ना, हम जब वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब पैरामीटर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, तो उसमें वैल्यू इनिशियल, अगर यहाँ पर INT है तो मुझे इंटीजर वैल्यू पास करना होगा। अगर यहाँ पर एक क्लास का ऑब्जेक्ट है तो मुझे ऑब्जेक्ट ही भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, OB है, तो OB मैंने यहाँ पर पास किया। तो ये OB जाकर E को रेफरेंस देगा और यहाँ पर चेक होगा, E इज द इंस्टेंस ऑफ मैनेजर, नो।
ये जो ऑब्जेक्ट हम रेफरेंस दे रहे हैं ये मैनेजर को रेफरेंस दे रहा है? नो। डायरेक्टर को रेफरेंस दे रहा है? नो, सॉरी, डायरेक्टर को रेफरेंस दे रहा है यहाँ पर। ओबी इज द रेफरेंस, गिविंग ए रेफरेंस टू द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर को रेफरेंस दे रहा है, यस। तो यहाँ पर आपको प्रिंट करेगा दिस इज डायरेक्टर। अभी अगर हम रन करेंगे तो ये आपको दिखाएगा दिस इज डायरेक्टर। क्लियर? यस सर। तो इंस्टेंस ऑफ बेसिकली हमको किस ऑब्जेक्ट किसको रेफरेंस दे रहा है इसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पर्सन वेरिएबल आर्गुमेंट। वेरिएबल आर्गुमेंट चीज क्या है? सपोज मैं क्लास डिफाइन करता हूं, फंक्शन डिफाइन करता हूं। तो ये int a है। तो अगर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेन मेथड में मुझे क्या करना है ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सपोज ऑब्जेक्ट हो गया आई, तो आई डॉट डिस्प्ले, तो मैं कितना वैल्यू दूंगा? 10 दूंगा। अगर मुझे यहां पर दो वैल्यू दूंगा 10, 20, is there any space to take this 20? नो सर। So I cannot pass any more value over there. If I have 1 cup, I can take 1 cup of tea. If anybody is giving me, भाई और चाय बचाए ले जाओ, अगर चाय का कप में फेंक दिया तो उसको लेने के लिए मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। तो अगर मेरे पास कंटेनर नहीं है तो मैं वैल्यू नहीं रख सकता। सपोज एक आदमी शॉपिंग मॉल में गया, तो मे बी दैट पर्सन
कैन परचेज 1 आइटम, कैन परचेज 2 आइटम, कैन परचेज 5 आइटम, और ऐसे ही लौट सकता है। सपोज वो शॉपिंग मॉल में लगभग 5,000 आइटम है, तो 5,000 आइटम का बिल बना सकता है वो। मैं अगर सिर्फ एक आइटम परचेज किया, मैं एक आइटम वहां पर परचेज करूंगा, तो बाकी जो आइटम है उसका बिल नहीं बनता है। तो जितना मैं खरीदता हूं उतना ही मेरा बिल वो कागज में आता है। लेकिन ऐसा अगर सिचुएशन होगा, सपोज 5,000 आइटम है, मैं एक ही आइटम खरीदूंगा, अगर 5,000 सबका बिल निकलेगा, सब में जीरो रहेगा। सपोज मैं एक बिस्किट खरीदा 3 रुपया का, तो वहां पर 3 मेंशन होगा। तो 5,000 का आइटम का पेज, 3 रुपये का बिस्किट खरीदा, लेकिन जो पेज निकला वो 2 रुपया का हो जाएगा। मतलब ये जो सिचुएशन कैसे कैसे आएगा, अगर डायनेमिकली मैं मेमोरी एलोकेट नहीं करूंगा तो ऐसा होगा। मतलब मैं ऐसा एक मेमोरी बनाऊंगा, जब कस्टमर एक आइटम खरीदेगा तो उसके लिए एक ही प्लेस आएगा, 2 आइटम खरीदेगा तो 2 के लिए जगह मिलेगा, 3 आइटम खरीदेगा 3 जगह मिलेगा। हम सिनेमा हॉल जाते हैं तो हम एक सीट के लिए बुकिंग करते हैं, ना कि सभी के लिए बुकिंग करते हैं। तो ऐसा अगर होता है, जैसे कि शादी का मंडप हम जैसे बुकिंग करते हैं, पूरा मंडप बुकिंग कर देते हैं, सारा लोग आकर खाकर जाएंगे उधर। तो ऐसा अगर होता तो कोई सिनेमा देखने नहीं जाता। वेरिएबल आर्गुमेंट इज जस्ट लाइक दैट। मैं जितना वैल्यू पैरामीटर में पास करूंगा उतना मेमोरी एलोकेट होगा। लेकिन आपको किसे पता चलेगा, एक आदमी अगर जाता है शॉपिंग मॉल में, ये एक आइटम खरीदेगा या 2 आइटम खरीदेगा या 3 आइटम खरीदेगा? सिक्योरिटी गार्ड पूछता है कि भाई आप कितना आइटम खरीदने आए हो? ऐसा नहीं होता है। हम घूमते रहते हैं, जितना मन हुआ बकेट में डालते रहते हैं। एक आइटम के लिए आए हैं तो वहां पर डिस्काउंट देखा तो जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो ये सारा वैल्यू को कहां पर स्टोर करेंगे? हम तो एक ही मेमोरी डिफाइन किया। मैं एक चीज के लिए आया हूं, एक बैग लेकर आया हूं, तो वहां पर डिस्काउंट देखा, मल्टीपल आइटम हम मुझे लेना है, तो कैसे स्टोर करेंगे? तो यहां पर वेरिएबल आर्गुमेंट का रोल आता है। ये क्या बोलता है, सपोज आपको 20 यहां पर डिफाइन करना है, तो आपको INT बी और एक बार डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मल्टीपल आइटम स्टोर करना है, यूजर बोल रहा है मैं मल्टीपल आइटम में लूंगा, लेकिन मेरे पास कंटेनर 1 है, तो नो प्रॉब्लम। तो आपको जितना मन है आप पैरामीटर पास करो, आपको जितना वैल्यू है आप पास करो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास एक वैल्यू है, मैं यहां पर भी वैल्यू ले सकता हूं। तो कैसे होगा 5 वैल्यू एक मेमोरी में मैं कैसे रखूंगा? इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द वेरिएबल इज डिफाइंड फॉर स्टोरिंग 1 वैल्यू। अगर 5 वैल्यू स्टोर करना है सेम डाटा टाइप का, मुझे आरए डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो आरए डिफाइन नहीं है, यहाँ पर तो सिंपल वेरिएबल डिफाइन है, INT है, तो 5 वैल्यू कहां पर स्टोर करूंगा? तो यहां पर जो रोल प्ले करता है वो होता है वेरिएबल आर्गुमेंट। आप एक वैल्यू स्टोर करो, 5 वैल्यू स्टोर करो, 100 वैल्यू, लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 बिलियन, कोई टेंशन नहीं होता है। आप जितना सारा वैल्यू पास कर लो, लेकिन वो एक ही मेमोरी में स्टोर होगा। So at runtime, when you are not sure about how many value the user is passing to the function at runtime to as a parameter, at that timing variable argument comes to the role. Variable argument वहीं पर काम में आता है।
अगर हमको पता नहीं है एक यूजर जब फंक्शन को कॉल करेगा कितना वैल्यू देगा, सो इन दैट केसेस वी आर यूजिंग वेरिएबल आर्गुमेंट। तो वेरिएबल आर्गुमेंट डिफाइन करने का तरीका क्या है ना, INT 3 डॉट सिंबल नॉर्म्स, मतलब यहाँ पर INT 3 ठो डॉट सिंबल देंगे, फिर स्पेस देकर ए डिफाइन करेंगे। अभी आप 5 वैल्यू स्टोर करो, 10 वैल्यू स्टोर करो, 11 वैल्यू स्टोर करो, 1 लाख स्टोर करो, कोई दिक्कत नहीं, तो सारा चीज ए में स्टोर हो जाएगा। समझ में आया वेरिएबल आर्गुमेंट कैसे डिफाइन होता है, उसका काम क्या है? यस सर, बट सर जब कॉल करते वक्त तो इसका काम कैसे होगा, मतलब अगर मल्टीपल आर्गुमेंट डाल दिए हम लोग तो वो वो अभी कौन से फंक्शन, आर्गुमेंट को लेकर। हाँ अभी अभी फंक्शनलिटी हम देंगे, मतलब कैसे हम, तो सारा वैल्यू स्टोर कर दिए, तो मुझे सारा वैल्यू को क्या करना है, रिट्राइव करना है और एडिशन करके दिखाना है, क्योंकि मुझे बिल बनाना है। ओके, तो अगर मल्टीपल वैल्यू एक जगह पर स्टोर होता है, दैट मीन्स आर ए कंसेप्ट इज प्रेजेंट। वेरिएबल आर्गुमेंट बोलता है यू हैव टू पास मोर देन वन वैल्यू, लेकिन वहां पर एक पॉइंट डालता है हैविंग सेम डाटा टाइप, एक डाटा टाइप का होना चाहिए, आप दो दो मतलब अलग अलग डाटा टाइप नहीं दे सकते हो। तो एक कंसेप्ट किसके साथ मैच कर रहा है, आरए के साथ मैच कर रहा है। आरए बोल रहा है अगर आप सेम टाइप का वैल्यू स्टोर करना है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेट की जरूरत नहीं है, आप एक ही मेमोरी एलोकेट करो, उसमें सारा वैल्यू डालते जाओ। यहां पर वेरिएबल आर्गुमेंट वही बोलता है दैट यू हैव टू स्टोर ऑल द वैल्यू, जो भी वैल्यू है वहां पर आप स्टोर कर लो, लेकिन जब आप स्टोर करते हो ये सेम टाइप का होना चाहिए। अगर सेम टाइप में एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर होता है, सो बाय नेचुरली ये आरए का कंसेप्ट है। आरए से सारा वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज किए थे, दैट इज एनहांस्ड फॉर लूप। enhanced for loop is used to retrieve all the element from the array। array से वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हम फॉर लूप यूज करते थे, वहां पर हम यूज करते थे इनिशियलाइजेशन, चेकिंग कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो एक वैल्यू रिट्राइव करने के लिए मुझे 3 चक्कर लगाना पड़ता है, पहले इनिशियलाइजेशन करो, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। बट हियर व्हाट हैपेंड, by using up enhanced for loop without any kind of comparison, without any kind of initialization, it will retrieve all the values। तो इसको रिट्राइव करने के लिए हम यूज करेंगे एनहांस फॉर लूप। ओके, सो इसका प्रोग्राम भी हम दिखाएंगे। इसको बोला जाता है वेरिएबल आर्गुमेंट और var args।
So it is used to pass the number of argument to function as parameter at runtime. तो इसका प्रोग्राम हम देखते हैं तो इजियर आपको समझ में आ जाएगा. Okay, so class where the where va equals to new here int sum is equals to va dot sum array. देखो ये क्लास है where, where का ऑब्जेक्ट बनाया int sum is equals to va dot sum array, means we call this function sum array function. When I call the sum array function, I pass the value 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. So all these values is going and store where? It's stored in int arrays. ये जो सारा वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये सब int arrays में स्टोर हो गया. नाउ यहां से मुझे वैल्यू रिट्राइव करना है. ओके ये int है रिटर्न टाइप, वॉइड के जगह पर int डिफाइन किए. यहाँ पर जब 7 वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाता है इट बिकम्स एन array. तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया int sum, इसको इनिशियलाइजेशन कर दिया 0 फॉर int I colon int arrays. मतलब इस वेरिएबल में जो जो वैल्यू है वो अगर i में स्टोर हो जाएगा वो सब वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगा. सम इज इक्वल्स टू सम प्लस i. शॉर्ट फॉर्म में हम डिफाइन किए हैं सम प्लस इक्वल्स टू i. तो सारा वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो गया. होने के बाद यहाँ पर रिटर्न सम करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा. जब वैल्यू रिटर्न करता है तो ये कहाँ पर स्टोर होगा? सम में स्टोर होगा. तो यहाँ पर हमको वैल्यू दिखाया. ओके तो ये रन करते हैं प्रोग्राम. The sum of the number is 280. Clear? Yes, sir. Overloading constructor. Already we did it. A subclass inherit all the method and variable from the superclass. Overload constructor means what? In a class, if you define more than one constructor, is called as the overload constructor. So in a program, by default, there is a default constructor is present. But if you want to include more than one constructor, we pass the constructor with a parameter. कंस्ट्रक्टर के साथ पैरामीटर डिफाइन करना है. तो कंस्ट्रक्टर का चैप्टर में डिफाइन हम ऑलरेडी कर चुके थे. 2 कंस्ट्रक्टर है, एक कंस्ट्रक्टर में कुछ पैरामीटर नहीं है और एक कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर है. तो अभी क्या करना है, आप कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर सकते हो बट यू कैन नॉट इनहेरिट द कंस्ट्रक्टर. आप कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते हो.
इसका मतलब क्या है, आप कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, बट वो कंस्ट्रक्टर में कोई नया फंक्शनैलिटी नहीं डाल सकते हो। A subclass inherit all the method and variable from the superclass। एक सबक्लास पेरेंट क्लास का सभी मेथड और वेरिएबल को यूज कर सकता है। A subclass doesn't inherit the constructor from the superclass। The two way to include a constructor are, there is a two way it is present to include a constructor. One is use the default constructor, another is write more than one constructor। तो कंस्ट्रक्टर को आप सिर्फ कॉल कर सकते हो, यू कैनॉट गिव द न्यू फंक्शनैलिटी टू द कंस्ट्रक्टर। हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं लेकिन कोई नया फंक्शनैलिटी नहीं डाल सकते हैं। सबक्लास इनहेरिट ऑल द मेथड एंड वेरिएबल फ्रॉम द सुपर क्लास, बट सबक्लास डजंट इनहेरिट द कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द सुपर क्लास। The two way to include the constructor are, one is use the default constructor, another is use one or more explicit constructor। तो अभी क्या करना है ना, जो कंस्ट्रक्टर है उसको कैसे कॉल करेंगे। तो हमको तो पता चल गया कंस्ट्रक्टर को सिर्फ कॉल कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फंक्शनैलिटी नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास में कॉल करना है, if you want to call the parent class constructor into the child class, in child class constructor first line write super method। चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट लाइन में हम अगर सुपर मेथड लिखते हैं तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन में आपको सुपर मेथड लिखना पड़ेगा, तभी जाकर आपका पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में कॉल होगा। लेकिन अगर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर है, तो अगर आप खाली सुपर मेथड लिखोगे तो वहां पर आपको एरर दिखाएगा। If the parent class constructor contain the parameter, so when you write the super method, when you call the super method, in the super method you have to pass the parameter। आपको पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा। If you are not passing the parameter, then compile time error will come। जैसे कि हम यहां पर एक पास करते हैं क्लास पेरेंट, तो यहां पर कंस्ट्रक्टर रहेगा पेरेंट, इसका फंक्शनैलिटी रहेगा। अभी क्लास चाइल्ड extends from parent। मुझे अभी क्या करना है ना, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए तो मुझे चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन नॉट सेकेंड लाइन, सुपर मेथड लिखना है।
तो क्या होगा ना, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर है int a कॉमा int b, उस वक्त अगर आप सिर्फ सुपर लिखोगे देन इट इज शोइंग यू कंपाइल टाइम एरर, आपको एक कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा। इसलिए यहां पर मैं वैल्यू पास करूंगा 10 एंड 20। जब मैं 10 एंड 20 पास करता हूं तो ये 10 एंड 20 ए एंड बी में इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर? यस सर। सर ये सुपर क्लास बस, सुपर जो लिखे हैं सुपर डॉट पेरेंट नहीं, सिर्फ सुपर लिखने से चल जाएगा। सिर्फ सुपर लिखने से कॉल होगा, सुपर डॉट कुछ नहीं। अगर कुछ मेंबर है तो सुपर डॉट यूज किया जाता है, सुपर अच्छा। डॉट शो फंक्शन, सुपर डॉट आई। ओके, बट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने है सुपर देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट लिख देने से अच्छा। वो कॉल हो जाएगा। ओके, इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। See that I first give a example of simple constructor then parameterized constructor. Parent system.out.println default constructor, child extends from parent, then for calling a simple constructor super method is used. Then now I am creating a object of class child I equals to new child, then the child class constructor is called, this one. When child class constructor is called, first it call the super method, then it is showing you default constructor and parent, then it is showing you this is a child class constructor.
The default constructor parent. This is a child class constructor. Okay, clear? Yes, sir. Now अभी मैं पैरामीटराइज के बारे में जाता हूँ. और यहाँ पर पैरामीटर है पेरेंट int a, यहाँ पर दिस डॉट ए इक्वल टू ए. तो यहाँ पर खाली अगर सुपर मेथड हम यूज करेंगे इट शोज एन एरर. This is a parameterized constructor, value is 5, and this is a child class constructor. Okay. Yes, sir. Next comes to the object class. Object class is the root of all the classes in Java. Object class is the root of all the classes in Java. If a class is not extends from any class, by default it is extends from object class. If a class is not extends from object class, it is not extends from any class, by default it is extends from object class. Java में कोई भी क्लासेस है, चाइल्ड पेरेंट होगा और लाइक चाइल्ड होगा, वो सब ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंस होता है. So it is the root of all the classes in Java. Public class employee extends from object. मतलब अगर हम सिर्फ लिखेंगे पब्लिक क्लास एम्प्लॉई, इनविजिबली ये ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंस होता है. It contains the equals method and toString method. Object class contains two methods. One is equals method, another is toString method. Okay. ये समझ में आया ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? Yes, sir. ओके, तो इसका जो इक्वल्स मेथड है ये आपको नेक्स्ट कंसेप्ट में बताऊंगा. ऑब्जेक्ट क्लास में दो ऑपरेटर है, एक है इक्वल्स और अनदर है इक्वल्स मेथड. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके सर मैं बोल रहा था कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज करूँ? देखो, आपका अगर क्लास में जो वेरिएबल आप डिफाइन करते हो, क्लास में जो वेरिएबल डिफाइन किया जाता है उसको एक तरीका से ग्लोबल वेरिएबल हमको बोलते हैं.
वो वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने के लिए हमको कंस्ट्रक्टर का जरूरत होता है, समझ में आया? लेकिन यस सर। मेथड क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। अगर उसके अंदर जो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे वो आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक में यूज नहीं होगा, क्लास के अंदर भी बाहर भी वो यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका स्कोप वही मेथड के अंदर लिमिटेड है। तो ग्लोबली कोई वेरिएबल को आपको इनिशियलाइजेशन करना है तो कंस्ट्रक्टर में करना पड़ता है, और आपको कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ काम करना है, वहां पर हम फंक्शन और मेथड ये यूज करेंगे। सपोज मुझे एडिशन के लिए एक सेपरेट फंक्शन, एम्प्लॉय का डिटेल्स एक्सेप्ट करने के लिए एक एक्सेप्ट मेथड यूज किया जाता है, एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले मेथड यूज किया जाता है। तो एक्सेप्ट और डिस्प्ले दोनों अलग फंक्शन है, लेकिन एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन लाने के लिए जो जो वेरिएबल डिफाइन होता है आप उसको ग्लोबल डिफाइन कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए उसका अंदर जो एक्सेप्ट के लिए जो फंक्शनैलिटी जो स्टेटमेंट हम यूज करेंगे उसका जो स्टेटमेंट है वो अलग रहेगा और इसका स्टेटमेंट अलग रहेगा। ओके, यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।